Yes, hello friends. Today in this session I am going to explain you the polynomials. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑन polynomials, a topic for class 9th which I have taken from your NCERT book. तो आज हम इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइप्स हैं, कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं polynomials में, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दोज पर्टिकुलर टर्म्स. So let's start first with the definition of polynomial. So what is a polynomial? It is basically an expression. तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि expression होता क्या है. तो my friends, expression is a combination of the variable and constant. What I am saying, that what is an expression? Expression is a combination of the variable plus constant. And they can combine in the different ways. They can combine through addition, subtraction, division, multiplication. Say for example, x minus 5, this is also an expression. X plus 5, this is also the expression. Similarly, 5x and x upon 5. So what we have seen, that in all these four expressions, the variable is combined with a constant. In the first case, subtraction, second case, addition, third case, multiplication, and the fourth case, that is division. We can have even the more complicated forms. We can have even something like x squared, let us say we have minus 5x, and say we have plus 6. Yes, even this is also an expression. So what is important, that the expression is a combination of the variable and the constant which are combined through the addition, subtraction, division or multiplication. Now the very fundamental question arises that whether x is an expression or not. Because जब आप इस x को देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे सिर्फ there is only one variable. हमें क्या दिखाई देता है? x which is a single variable. तो एकदम से हमारे दिमाग में क्या आता है, that may be or may not be an expression. लेकिन अगर हम इसको closely देखते हैं तो x can be also written as 1 multiplied by x. और जैसे मैंने x को लिखा 1 multiplied by x, तो what do we realize कि x gets combined with a constant which is 1 through multiplication. So yes, even x is an expression. Let's look at the number 5. क्या 5 एक्सप्रेशन है? अब आप फिर से कहेंगे कि सर इसमें वेरिएबल तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर जो है, तो हाउ दिस कैन बी एन एक्सप्रेशन? बट दिस 5 कैन बी ऑलवेज रिटन एज 5x raised to the power 0, because anything raised to the power 0 is always 1. So अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा? दिस इज 5 multiplied by 1 which is again 5. So what you have observed कि देखने में 5 क्या लगता है? 5 is a constant. But yes, अगर हम चाहें तो 5 को भी हम किसी वेरिएबल से कंबाइन कर सकते हैं. But the only thing will be that that particular variable is going to be raised to the power 0. So yes, my friends, even this 5 is also an expression. So expression can be the variable, it can be a constant, or it can be any of their combination. तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? दैट पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन. इसके साथ साथ हमें एक बात और समझनी है, दैट एवरी एक्सप्रेशन कैन नॉट बी अ पॉलिनोमियल. क्योंकि पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है कि पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन में जितने भी टर्म्स होंगे दे शुड बी ऑफ द फॉर्म ax raised to the power n. What is a? A is the coefficient. अब पहले समझ लेते हैं. What is x? X is a variable. What is n? N is the exponent of x. And what is a? A is the coefficient. A is the coefficient of this particular variable. तो अब यहाँ पे requirement क्या होती है? The requirement is that ये जो coefficient है a, this should be a real number. This should be a real number. It means it can be
एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन, जो आपने पढ़ा है नंबर सिस्टम के अंदर, तो कोई भी रियल नंबर दैट कैन बी ए, तो a can be even 0 also, it can be -5, it can be -6/7, it can be even √2 also, right? So a should be a real number, x of course is a variable, और ये जो n जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंट, this should be a whole number, this should be a whole number. तो अगर ये दो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो इसका मतलब जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है, पॉलिनोमियल. इसका मतलब एक बहुत सिंपल काम करना है आपको कि जब जहाँ भी आपको एक्सप्रेशन दिखाई देगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसका कोफिशिएंट क्या है. तो पहले आप चेक करेंगे कि जो कोफिशिएंट है वो रियल नंबर है या नहीं है, दैट इज वन. अगर वो रियल नंबर है फिर आपने सेकंड चेक क्या करना है कि जो एक्सपोनेंट ऑफ x है दैट शुड बी होल नंबर, व्हिच मींस it can be 0, 1, 2 or up to infinity. So let's take some examples to understand it. कुछ examples लेते हैं इसको समझने के लिए. Suppose मैं लिखता हूँ 5x square. Is it a polynomial? Yes. क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल क्या है आपका x square, कोफिशिएंट क्या हो गया उसका 5. व्हाट इज 5? 5 इज अ रियल नंबर. x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या दिया हुआ है 2, और 2 क्या होता है, 2 इज अ होल नंबर. तो वी कैन से दैट 5x squared is a polynomial. Let's take another example. Say let me write 6 upon x square. Now is this a polynomial? अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि x square is coming in the denominator. x square किस में आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है. तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ in the numerator, if I bring this term into the numerator, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6x raised to the power -2. अब आपने क्या नोटिस किया, इसका जो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है 6, वो तो ठीक है रियल नंबर है, बट व्हाट अबाउट द एक्सपोनेंट ऑफ x? एक्सपोनेंट ऑफ x क्या आ रहा है यहाँ पे -2, और -2 इज नॉट द होल नंबर. तो व्हाट आई वुड से दैट दिस एक्सप्रेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल. सो फर्स्ट इज अ पॉलिनोमियल 5x square, बट 6 upon x square is not a polynomial. Now let's write the number 9. Is 9 a polynomial? Yes, it is, because this 9 can be written as 9x raised to the power 0. मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था. इस 9 को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं विद द वेरिएबल, लेकिन सिर्फ यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो क्या रहेगा यहाँ पे 0, और 0 क्या होता है, 0 इज अ होल नंबर. तो दैट इज व्हाई all the conditions are fulfilled. So even this 9 is also the polynomial. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, this we call it as a constant polynomial. इसको हम क्या लिखते हैं, we call it as a constant polynomial. ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा in the types of polynomial. ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा 0, तो कैन 0 भी a polynomial? इसको फिर से एक बार कंबाइन करते हैं वेरिएबल के साथ. तो दिस 0 कैन बी रिटन एज 0 into x raised to the power n. Now 0, अब 0 को भी हम चाहें तो we can combine with the variable. तो ये क्या हो जाएगा आपका 0x raised to the power n. क्योंकि अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, this 0 is a real number, x is a variable, and n can be anything. n can be any of the whole number, because we know the golden rule कि जब हम 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाता है, 0. तो which means again this is a polynomial. What about 1 upon x? Is it a polynomial? अब आप फिर से अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 1. जब हम इसको x को ऊपर लेके जाएंगे इन द न्यूमरेटर
तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम x रेज़ टू द पावर -1. तो अगेन दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल. सो तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल से I have tried to explain you that in order to be a polynomial, the first, the coefficient should be a real number, and second, आपको जो भी वेरिएबल दिया होगा उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए, it should be a whole number. It should be a whole number. एक थोड़ा सा हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन क्या रहता है, जब सामने एक वर्ड आता है पॉलिनोमियल तो हम लोग क्या सोचते हैं कि it should have the multiple terms. It should have more than one term, 2 or more terms rather. लेकिन polynomial can be even a single term also, जिसको हम क्या कहते हैं, we call it a monomial. जैसे for example, these are all the examples of monomial. ये जितने मैंने आपको examples दिए, these are the examples of monomial. Now let's take one more example. Say 3x raised to the power 3/2 x raised to the power 1/2. अब इसमें आपको ये बताना है कि ये जो टर्म आपको दी हुई है whether it is a polynomial or not. तो इसको डिसाइड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे एक्सपोनेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि कॉमन बेस है. व्हाट इज अ कॉमन बेस? कॉमन बेस इज x. तो वी कैन सॉल्व दिस एक्सपोनेंट एज 3x 3/2 minus 1/2. आपको शायद वो रूल याद होगा एक्सपोनेंट का, x raised to the power m divided by x raised to the power n is equal to x raised to the power m minus n. तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे कॉमन बेस है x न्यूमरेटर में एज वेल एज डिनोमिनेटर. सो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3/2 minus 1/2 which means this will be 2/2 and this will become 3x raised to the power 1. तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि जो कोफिशिएंट है 3, इट इज़ अ रियल नंबर. यहाँ पे जो x वेरिएबल है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है, 1, which is again a whole number. So we can say that even this expression is also the polynomial. एक और ट्राई करते हैं. सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2x raised to the power 1/4 upon, let us say we write down x raised to the power 3/4. Let's try to solve this. यहाँ पे हमने क्या लिखना है, 1/4 minus 3/4. ये आपका हो जाएगा 2x. जब 1/4 minus 3/4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा minus 2/4 which will become 2x raised to the power minus 1/2. अब यहाँ पे सारा कुछ ठीक चल रहा था. प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट ऑफ x है वो क्या आ गया, वो आपका आ गया -1/2. और -1/2 is not the whole number, which means even this is not the polynomial. So I hope with these examples you got the basic concept as to how to identify the polynomial. अब हम बढ़ते हैं on the types of polynomial. पॉलिनोमियल में आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल के अंदर आपको जितने भी टर्म्स दिए होंगे, ठीक है, उन सभी टर्म्स में दिस कंडीशन शुड बी एप्लीकेबल. यानी कि आपको चेक करना है कि जितने भी टर्म्स आपको दी हुई है पॉलिनोमियल में, दे शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन ax raised to the power n. एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर बिफोर आई कम टू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. से आपको दिया हुआ है x² minus 3/x और आपसे पूछते हैं कि whether it is a polynomial or not. अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको क्या दी हुई है, x², which means यहाँ पे जो x² है इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, इट्स कोफिशिएंट इज 1. 1 क्या है, 1 इज अ
व्हाट इज 1? 1 इज अ रियल नंबर। अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ x देखते हैं तो वो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? दिस इज 2 विच इज अ होल नंबर। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो ये कंडीशन पूरी कर रही है, दैट इज ax रेज़ टू द पावर n। अब हम देखते हैं सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म हमें क्या दी हुई है? -3/x। तो जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, -3/x कैन बी रिटन एज -3x रेज़ टू द पावर -1। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कोफिशिएंट ऑफ जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? -3। -3 जो है वो क्या है? दिस इज अ रियल नंबर। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंट देखते हैं x का, तो x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या आ रहा है? -1, एंड -1 इज नॉट द होल नंबर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दिस एंटायर एक्सप्रेशन इज नॉट द पॉलिनोमियल, बिकॉज जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो तो the first expression is of the form ax raised to the power n, but the second expression is not of the form ax raised to the power n। तो इस तरह से आपको क्या करना है? आपको पॉलिनोमियल्स को आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। अब फटाफट से आते हैं ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, यू कैन से, द नंबर ऑफ टर्म्स, so on the basis of number of terms we can say we have monomial. If the polynomial contains only one term, it is known as monomial. जैसे for example 5, 6x, x square, 3x, 5/2x. These are all the examples of monomials. Even 0, this is also a monomial. Then we have binomial, where we have exactly two terms in the polynomial. Say for example x square minus 4, 5x square plus 6, 9 minus, let us say, x. So these are the examples of what is known as a binomial. ऐसे ही अगर किसी भी पॉलिनोमियल में आपको तीन टर्म्स मिलती हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं? we call it trinomial, say x squared minus 5x plus 3. So this is one classification of polynomial which is based on the number of terms. अब हम आते हैं another important aspect that is known as degree of polynomial. Let's understand this concept, degree of polynomial. So what is the meaning of the degree of the polynomial? Polynomial में जो भी आपको वेरिएबल दिया हुआ है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। से फॉर एग्जांपल मैंने नंबर यहाँ पे लिखा 6x³ minus 2x² plus 9। ऑब्वियसली यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है? दैट इज 3। यहाँ पे x की पावर 3 आ रही है, यहाँ पे x की पावर क्या हो रही है? 2, और यहाँ पे x की पावर क्या आएगी? 0। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था 9 कैन बी रिटन एज 9x रेज़ टू द पावर 0। तो फर्स्ट टर्म में व्हाट इज द पावर ऑफ x? 3। सेकेंड टर्म में व्हाट इज द पावर ऑफ x? 2। और जो कांस्टेंट है 9 उसमें व्हाट इज द पावर ऑफ x? 0। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर? मैक्सिमम पावर इज 3। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? आई विल से दैट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। Same way, let us say I take another example, 9/2 x4 minus 3x³ plus 2x² plus 6.
फिर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 4, यहाँ पे x की पावर क्या आ रही है 3, यहाँ पे x की पावर क्या हो गई 2 और यहाँ पे x की पावर क्या हो गई 0। इनमें से मैक्सिमम पावर क्या आ रही है x की 4। इसका मतलब माय आंसर इज दैट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज 4। Let's take few more examples. Let us say x minus 5. अब यहाँ पे what is the power of x? 1. यहाँ पे x की पावर क्या हो गई 0. What is the maximum power of x? 1. इसका मतलब what is the degree of polynomial? Degree of polynomial is 1. अब सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ, लेट अस से आई राइट अ नंबर 5. आई राइट अ नंबर 5. अब आपको बताना है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले एग्जांपल्स में कि 5 कैन बी रिटन एज 5x रेज़ टू द पावर 0. 5x रेज़ टू द पावर 0 बिकॉज x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो जब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका फिर से क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे व्हाट इज द पावर ऑफ व्हाट इज द ओनली पावर ऑफ x 0। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। और सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ 0, तो 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 0x रेज़ टू द पावर n। यहाँ पे x की कोई मर्जी पावर आ जाए, लेकिन जैसे आपने उसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0. इट मीन्स ये जो नंबर 0 है इट कैन टेक एनी पावर ऑफ x. इट मीन्स x कैन बी 0 ऑल्सो, इट कैन बी 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी. तो इसमें हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं दैट इन केस ऑफ 0 द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड. Degree of the polynomial is undefined. अब हम लोग फर्स्ट से देखते हैं the types of polynomial on the basis of degree. तो जब आपको ये निकालना आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन आल्सो. अब लेट अस से आई राइट the expression x minus 5. तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जो x minus 5 पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या है 1. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. उसको हम क्या बोलेंगे, we call it a linear polynomial. Similarly x square minus 6x plus 9. अब यहाँ पे what is the degree of polynomial? Degree of polynomial is 2. तो इसको हमने क्या इसका नाम क्या दिया हुआ है हमने, इसको हम बोलते हैं quadratic polynomial. We call it a quadratic polynomial. आपने पिछली क्लासेस में सॉल्व भी की होंगी वेरियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो जहाँ पे पावर 2 आती है, जहाँ पे डिग्री 2 होती है गिवन पॉलिनोमियल की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेम वे 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब यहाँ पे व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3. तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इट इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल. और ऐसे मान लो आपको दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 16. तो व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x? 4. तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो जहाँ पे डिग्री 1 होगी उसको हमने क्या बोलना है, लीनियर पॉलिनोमियल. जहाँ पे 2 आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 3 को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक. और 4 को हम क्या बोलते हैं, 4 को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब इसके बाद पॉलिनोमियल के दो स्पेशल केसेस देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार उसी को लेके एग्जाम्स में कंफ्यूजन भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल 9.
अब ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, 9 कैन बी रिटन एज 9x रेज़ टू द पावर 0। तो जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 0 आती है, इसका मतलब वहां पे आपको सिर्फ कांस्टेंट दिया हुआ है। वहां पे क्या दिया हुआ है? देयर इज ओनली कांस्टेंट इज गिवन टू यू। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी कि अगर आपको सिर्फ कोई भी रियल नंबर दिया हुआ है, √5, तो इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। √6 इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। -3/2 अगेन इट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ऐसे आपका 0 होता है जिसको वी कैन राइट इट डाउन एज 0x रेज़ टू द पावर n, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, इसलिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अ ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो व्हाट वी हैव डन नाउ? लीनियर, देन वी हैव डिस्कस्ड क्वाड्रेटिक, then cubic, then biquadratic, then we have what is called as a constant polynomial, right? And then we have a you can say the zero polynomial, where the degree of the polynomial is undefined. Then the polynomial can be in one variable or it can be in two variable. जैसे सपोज मैं लिखता हूँ x² - 6x + 9। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात कर रहे हैं। व्हाट इज दैट वेरिएबल? x। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको जनरली हम कैसे लिखते हैं? वी राइट इट एज px। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में? x वेरिएबल में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? विल राइट डाउन p और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x। तो दिस इज द पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल, दैट इज x। ऐसे सपोज मैं लिखता हूँ y² - 2। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, लेकिन वो वेरिएबल कौन सा है? y। यहाँ पे x था, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ गया? y। तो इसको आपने क्या लिखना है? विल राइट इट डाउन एज py। और सपोज आपको कोई इक्वेशन दी हुई है, से वी हैव x² - 2xy + y²। अब यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे देयर आर टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड सेकेंड इज y। तो इसको हमने क्या लिखना है? इसको हमें लिखना है px, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? y। तो रिमेंबर, वी कैन हैव द पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल, or we can have the polynomial in more than one variable. So my friends, so in this session I have covered the basic concepts which are related to polynomial. In the next video हम लोग इस पे कुछ exercise लेंगे so that we are able to revise all these basic concepts. Thank you all.